Hello everyone, I hope you all are doing well. Now, in this particular session, we shall be discussing all the important pointers of a topic of general awareness. Now, general awareness is one of the important topics when it comes to undergraduate level entrances, and you will get a lot of questions from the GK and current affairs section. Now, when I say general awareness has both GK and there's a current affairs section also there, right? So, in general awareness, you shall be asked questions on topics of history, which includes ancient, medieval, modern. You shall be asked questions on the topics geography. Questions would be there on Indian polity. Questions would be there on general science, the basic 10th level physics, chemistry, bio. There will be questions on Indian eco as well, right? So these are some of the top 4-5 topics when it comes to the GK portion, right? Now, apart from that, anything which is not covered here would be covered in the miscellaneous GK section. Okay, so all those things would be covered in the miscellaneous GK section, whichever is not covered in ancient, medieval, modern history, geography, polity, science, anything not covered here will get covered in miscellaneous GK. Alright. So this particular topic that we'll do today is geography. Now when you look at this word geography, you see it is made up of two words. Okay, it has the word geo and it has the word graphy. Okay, now what is the meaning of geo? Geo means earth, right? And what is the meaning of graphy? Graphy means to study. That is what geography is. By literal meaning, geography is to study about Earth. But just think about it. Do we only study about Earth? No. हम सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं पढ़ते ना, हम अर्थ के बारे में बाकी प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम में लाइक मर्करी, जुपिटर, वीनस, इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना? We study about the landforms of Earth, we study about rocks, we study about atmosphere, we study about the internal structure of Earth, we study about solar system, we study about sun. There are different topics which are in a way related to Earth, we study. So, Earth and everything that surrounds Earth or is related to Earth is what we study in geography, right? Now, students, there can be two bifurcations, two divisions of the subject matter geography, है ना? तो geography as a subject matter के दो divisions हो सकते हैं. एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा इसमें systematic geography और दूसरा आपका इसमें क्या डिविजन हो जाएगा? सेकेंड डिविजन वुड बी रीजनल ज्योग्राफी. ठीक है, एक आपका होगा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और एक आपका होगा रीजनल ज्योग्राफी, राइट? व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक इज एवरीथिंग that has to deal with like solar system, like sun, like earth, है ना? All the physical aspects of it, systematic geography. Regional geography is geography of a particular region, of a particular territory. हमारे केस में कौन सी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए? इंडियन ज्योग्राफी वुड बी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमारे केस में इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इज एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद सन, सोलर सिस्टम, स्पेस, यूनिवर्स, ऑल ऑफ इट, है ना? नाउ जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है इज द यूनिवर्स. यूनिवर्स सबसे पहले दिमाग में आता है. क्यों आता है यूनिवर्स दिमाग में? क्योंकि यूनिवर्स इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, राइट? आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. देन देयर आर लॉट ऑफ
we say there's a solar system that we have, right? हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ है. अर्थ के आसपास देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स, है ना? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये टोटल 8 प्लैनेट आपके हो गए. उसके अलावा आपका क्या है इसमें? उसके अलावा आपका ये आता है कि एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, राइट? ये सब हम पढ़ेंगे. एंड वील स्टार्ट विद द टॉपिक यूनिवर्स. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्स है क्या, व्हाट इज यूनिवर्स, तो आपका सिंपल एक लाइन में जवाब होना चाहिए दैट द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग. जो भी आपको दिख रहा है या नहीं भी दिख पा रहा, द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग मेक्स अप आवर यूनिवर्स. ठीक है? हमारे आसपास हमें जो भी दिख रहा है, मुझे टेबल दिख रही है, मुझे चेयर दिख रही है, राइट? मुझे स्टूडियो में देयर इज एसी, देयर इज फैन, एवरीथिंग दैट आई कैन सी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स. और कई बार क्या होता है जो चीजें आप नहीं भी देख सकते, लाइक एनर्जी, डार्क मैटर, ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स आर universe. So the totality of everything makes up our universe. पर क्या आप मुझे बताओगे कि क्या हमारे यूनिवर्स का कोई शेप है? Then we say there is no shape. क्या हमारे यूनिवर्स की कोई डायमेंशन है? Then we say what? There is no dimension. So ना तो यूनिवर्स की कोई शेप है, ना ही कोई डायमेंशन है. That means what? Universe is infinite in nature. It has no limit. It is infinite in nature. It is infinite. कोई लिमिट नहीं है ना? अब आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन बनता है that what is the study of universe known as? बहुत बेसिक क्वेश्चन. स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या? स्टडी ऑफ यूनिवर्स आपका बोलते हैं कॉस्मोलॉजी को. Cosmology is the study of universe. I hope this is clear कि study of universe क्या है? Study of universe आपका cosmology है. ठीक? अब अगली चीज आपकी क्या आती है? नेक्स्ट टॉपिक इज कि ये यूनिवर्स पूरा का पूरा ओरिजिनेट कैसे हुआ. अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. हुआ क्या that initially everything was a concentrated lump of mass. ठीक है? और इस concentrated lump of mass का नाम दिया क्या? This concentrated lump of mass was known as primeval atom. ठीक है? अब आप जिन बच्चों ने साइंस पढ़ा है या इन जनरल आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम primeval atom नाम क्यों दिया? एटम इज तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होती है, राइट? तो primeval atom नाम क्यों दिया? और ये कंफ्यूजन और आगे क्यों बढ़ेगा जब मैं आपको बताऊंगी कि ये primeval atom एक्सप्लोड कर गया. ठीक है? दिस primeval atom exploded. और जब ये primeval atom एक्सप्लोड करा तो हुआ क्या? जैसे पटाखा होता है, फायर क्रैकर. जब वो फायर क्रैकर बर्स्ट होता है, आपने देखा होगा चारों तरफ क्या है, बिट्स एंड पीसेस में वो स्प्लैटर हो जाता है, राइट? सिमिलर फैशन में ये primeval atom आपका एक्सप्लोड हुआ और एक बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं, वी से दैट इट इज अ मैसिव एक्सप्लोजन दैट हैपेंड somewhere around 15 billion years ago. एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ. और जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो अर्थ बनी, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स बने, राइट? वहां से ये सारी चीजें, सन बना, वहां से ये सारी चीजें बननी शुरू हुई, राइट? अब कई लोग ये कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो लेट्स से इन सम रिलीजन ये पीपल से दैट ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स बनाया. पर क्या ये पीपल ऑफ द वेस्ट इस थ्योरी को इस थ्योरी को आई वुड से कि रिलेट कर पाएंगे? नो. इस थ्योरी को ट्रू मानेंगे? नो. सो देयर वाज दिस बेल्जियन फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जिनका नाम था मिस्टर जॉर्ज लिमेथ. इन्होंने बताया कि ऐसा एक एक्सप्लोजन कुछ 15 बिलियन साल पहले हुआ था. एक primeval atom था, वो एक्सप्लोड कर गया, वहां से कंटेंट्स ऑफ अ स्पेस गॉट फॉर्म और वहां से एक्चुअली हमारा यूनिवर्स गॉट ओरिजिनेटेड. और ये primeval atom था क्या? दिस वाज नथिंग. दिस वाज अ कॉन्सेंट्रेटेड lump of mass.
right? So this concentrated lump of mass called as primeval atom, it exploded and contents of a space got formed. और इस मैसिव एक्सप्लोजन का नाम क्या दिया? इसका नाम दिया बिग बैंग, और इस थ्योरी को बोला बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी बनती है द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए आगे चलते हैं. अब यहां से बनी बहुत सारी क्या गैलेक्सीज. हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी. बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, और ऐसा कहते हैं कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है. मिल्की वे जैसी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स. 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है, लाइक मिल्की वे. हमें केवल 2-4 के बारे में पता है, मिल्की वे के बारे में पता है, एंड्रोमेडा के बारे में पता है, बट देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 100 बिलियन ही स्टार्स हैं. ऑन एन एवरेज ऑल गैलेक्सीज हैव 100 बिलियन स्टार्स. तो अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन अ यूनिवर्स कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power 22. देखा कितने सारे स्टार्स हैं. अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सारी गैलेक्सीज एक जैसी दिखती हैं? नो. अब ये जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है इज द इमेज ऑफ मिल्की वे. क्या शेप है इसकी? दिस इज स्पाइरल शेप. आप देख रहे हो ना, जलेबी की तरह शेप आ रही है, स्पाइरल शेप आ रही है. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैम सारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप की होती है? आंसर है नहीं भाई, सारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप की नहीं होती है. रफली अराउंड 90 to 95% जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो हमारी स्पाइरल शेप की हैं. बाकी गैलेक्सीज हमारी क्या है? सम आर इरेगुलर, सम आर सर्कुलर, राइट? वो अलग अलग शेप है, बट मेजरली गैलेक्सीज हमारी कौन से शेप की है? स्पाइरल शेप की है. ठीक है. अब मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर कितना है? 1 लाख लाइट ईयर्स. मतलब यहां से यहां तक वुड बी 1 लाख लाइट ईयर्स. अब स्पेस में चीजें लाइट ईयर में मेजर होती हैं, राइट? इंचेस, फुट, मीटर, सेंटीमीटर में नहीं मेजर होती, लाइट ईयर में मेजर होता है. अब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर. एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो आपका लाइट ईयर कह गया. पर अभी हमने डिस्टेंस हम तो निकाल लेंगे, राइट? हमें टाइम भी पता चल गया, टाइम कितना है? 1 ईयर. There has to be a speed as well, कि इसी स्पीड पे तो लाइट ट्रैवल कर रही होगी. किस स्पीड पे? Somewhere around 299, 299,792,458, which is approximately 3 lakh kilometer per second. लाइट अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है तो एक साल में जितना डिस्टेंस वो लाइट कवर करेगी इज व्हाट अ लाइट ईयर इज. ठीक है. अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक, ये आपका लाइट ईयर हो गया. अब आप ये देखो कि मिल्की वे गैलेक्सी वैसे 1 लाख लाइट ईयर जितना बड़ा उसका डायमीटर है. इमेजिन हाउ वास्ट दिस गैलेक्सी वुड बी. ठीक है. अब मिल्की वे गैलेक्सी को, जैसे अर्थ है, अर्थ को 1 साल लगता है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन. सन के अराउंड घूमने से मिल्की वे गैलेक्सी को लगते हैं समवेयर अराउंड 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड 1 रेवोल्यूशन. एक पूरा रेवोल्यूशन कवर करने में मिल्की वे गैलेक्सी को 250 मिलियन साल लगते हैं. इमेजिन कितने स्लो स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी मूव कर रही है. ठीक है. उसके बाद क्या है गैलेक्टिक सेंटर? अब सारे गैलेक्सीज क्या है? मूव कर रहे हैं अराउंड अ रोटेशनल सेंटर, और वो रोटेशनल सेंटर क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी का, विच इज नोन एज द गैलेक्टिक सेंटर. सो गैलेक्टिक सेंटर इज द रोटेशनल सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. अगला पॉइंट है नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है मिल्की वे के? दिस इज एंड्रोमेडा. अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिंस गैलेक्सी इज सो वास्ट, हमें तो नहीं पता कि पूरे के पूरे गैलेक्सी में क्या चीज कहां पर है. वी आर अनअवेयर ऑफ इट.
राइट। कहीं कहीं पर क्या है कि देयर आर सच प्लेसेस जो एक्ट करते हैं ऐसे एरियाज कि अगर आप वहां से कुछ भी पास हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा दैट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, इट एक्ट्स लाइक अ टनल, है ना, टनल विद नो एंड टू इट, राइट। ऐसे एरियाज को बोलते हैं ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स वो एरियाज होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि नीदर पार्टिकल्स नॉर लाइट कैन एस्केप। एंड ज्यादातर गैलेक्सीज में ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का जो सबसे बड़ा ब्लैक होल डिस्कवर किया गया मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड इज नोन एज सैजिटेरियस ए। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड जो ब्लैक होल देखने को मिला इज नोन एज सैजिटेरियस ए। अब आप यहाँ पे देखो, ए के आगे एस्टेरिस्क या स्टार साइन है, राइट। क्यों है? क्योंकि सिंस ये ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है एंड इट इज सब्जेक्ट टू फर्दर डिस्कवरी, इसलिए हमने उसके आगे स्टार साइन लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द गैलेक्सी दैट यू शुड। अब अगला टॉपिक जो आपका आता है शुरू, गैलेक्सी। अब जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, सो मिल्की वे गैलेक्सी की एक आर्म में हमारा सोलर सिस्टम, इन द ओरायन आर्म वी हैव अ सोलर सिस्टम। इतना बड़ा सोलर सिस्टम में लगता है, बट गैलेक्सी का बहुत छोटा सा पार्ट है, एक आर्म में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। अब सोलर सिस्टम क्या है, ये इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या है सोलर सिस्टम बेटा? सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स आपने स्कूल में बनाए होंगे, सोशल स्टडीज में, ज्योग्राफी जब पढ़ रहे थे, है ना। आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, राइट, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस के, एस्टेरॉइड्स हो गए, मून्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, कॉन्स्टेलेशंस हो गए, स्टार्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, ये सब, राइट। पर इन सबके सेंटर में क्या है? इन सबके सेंटर में है हमारा सन। सन इज एट द सेंटर, राइट। नाउ जब भी सन का टॉपिक आता है, देयर आर 2-3 पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंटर ये है, क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सन, कि सन का कॉम्पोजिशन क्या है, किन गैसेस से मिलकर सन बना है। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑन पार्ट्स ऑफ सन, कि सन के क्या क्या पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑन टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑन सन। अब पार्ट समझ आएगा कि कुड बी मल्टीपल पार्ट्स, कंपोजिशन समझ आएगा कि भाई 2-3 चीजें हो सकती है जिससे मिलके बना है। टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है कि टेम्परेचर में कोर का अलग होगा टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर अलग होगा। सो देयर विल बी अ डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ ऑन कोर एंड देयर वुड बी डिफरेंट टेम्परेचर ऑन द सरफेस, राइट। नाउ जब मैं बात करती हूँ कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन में सन में मेजर गैसेस हैं आपके हाइड्रोजन विच इज 70% रफली, उसके बाद हीलियम विच इज रफली 27% एंड 2-3% आपकी अदर गैसेस, अदर एलिमेंट्स हैं। होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता जाता है और इस फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, जिससे हीट, लाइट, एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती रहती है। और तभी हम बोलते हैं सन को क्या, तभी हम बोलते हैं दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी ऑन अर्थ, राइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी ऑन अर्थ, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सन को, राइट। सन को हम इसीलिए ये चीज बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन, आपका क्या है, अब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती जा रही है। तो यहाँ पे आपका कॉम्पोजिशन का पार्ट तो सॉर्ट हो गया कि व्हाट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सन। कॉम्पोजिशन क्या है, 70% हाइड्रोजन, 27 to 28% हीलियम और बाकी जो है वो अदर गैसेस हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द पार्ट्स ऑफ सन। अब जब मैं सन के पार्ट्स की बात करती हूँ
तो पार्ट्स ऑफ सन में आपके क्या है, दो पार्ट्स इधर आ जाते हैं। एक आपका है फोटोस्फीयर और एक आपका पार्ट है सन का कोरोना। ये आपके सन के दो पार्ट्स है, फोटोस्फीयर एंड कोरोना। अब सवाल ये आता है कि फोटोस्फीयर क्या है। फोटोस्फीयर, अब आप देखो फोटो, हमें कैसे फोटोज चाहिए होते हैं, ब्राइट with good lighting, bright and shiny pictures, bright and shiny photos we want. तो फोटोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर इज द bright and shiny surface of sun. ठीक है, ब्राइट एंड शाइनी सरफेस ऑफ सन इज फोटोस्फीयर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फिर कोरोना क्या है। अगर फोटोस्फीयर ब्राइट एंड शाइनी सरफेस है तो कोरोना क्या है, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। कोरोना क्या है, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। सिंपल, दिस इज व्हाट कोरोना इज। अब पार्ट्स भी सॉर्ट हो गए यहाँ पे। अब आता है टेम्परेचर की बात, कि टेम्परेचर का क्या फिर। तो टेम्परेचर आपका कोर का टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है कोर का टेम्परेचर होगा ज्यादा। ठीक है, कोर का टेम्परेचर क्या है सन का, 15,000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ कोर टेम्परेचर। सरफेस का टेम्परेचर क्या है, सरफेस का टेम्परेचर इज 6,000 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपके टेम्परेचर ऑफ सन हो गए, कोर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर। कोर का टेम्परेचर 15,000 डिग्री सेल्सियस और सरफेस का टेम्परेचर इज 6,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका यहाँ पर हुआ है। राइट, सरफेस टेम्परेचर ये लिखा 6,000 और आपका सेंटर या कोर का टेम्परेचर ये लिखा 15,000. ठीक, अब आपसे क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक्स टू रीच अर्थ। सनलाइट अर्थ तक आने में 8.5 मिनट लगाती है। सनलाइट टेक्स 8.5 मिनट्स टू रीच अर्थ। अभी लाइट है, अब जब सन की लाइट है तो किसी तो स्पीड पर आ रही होगी, क्या स्पीड है, एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट सनलाइट टेक्स टू रीच अर्थ। 8.5 मिनट लगते हैं जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट आ रही है तब। ठीक है, ये आपका सनलाइट का हो गया और ये टॉपिक था आपका सन। अब हमें पता है कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हमारे प्लैनेट्स, है ना। कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, टोटल 8 प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स भी क्या है, प्लैनेट्स आपके हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे होते हैं आउटर प्लैनेट्स और एक हमारे होते हैं इनर प्लैनेट्स। Inner planets and outer planets are the two categorization of planets that we have, inner and outer. चलो ये दोनों एक जैसे लिख देते हैं। Inner and outer planets, right? अब सिंपल सी बात है, 4 आपके आउटर प्लैनेट्स होंगे और 4 ही आपके इनर प्लैनेट्स। ठीक है, 4 आउटर प्लैनेट्स आपके कौन कौन से हो गए, 4 इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए। इनर प्लैनेट्स आपके कौन से हुए, इनर प्लैनेट्स वुड बी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके इनर प्लैनेट्स हुए। आउटर प्लैनेट्स कौन से, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune, ये 4 आपके क्या हुए, ये 4 आपके आउटर प्लैनेट्स हो गए। Mercury, Venus, Earth, Mars, inner. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, these 4 are outer planets. Understood? अब इनर और आउटर में फर्क क्या है, इनर ऑफ कोर्स क्लोजर टू सन है, आउटर क्या है, फार अवे फ्रॉम सन है। इनर प्लैनेट्स का जो है वो थोड़ा सा आपका रॉकी
सरफेस होता है, इसीलिए इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और आउटर प्लैनेट्स इज मेड अप ऑफ गैसेस, गैस जायंट्स है, तो उनको जोवियन प्लैनेट्स या फिर गैस जायंट्स भी बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स को। ठीक है, अब मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल क्यों बोला जाता है? बिकॉज उनका स्ट्रक्चर इज समवॉट सिमिलर टू अर्थ, राइट? और आउटर प्लैनेट्स दे आर जोवियन प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और इसीलिए दो कैटेगराइजेशन में हमने डिवाइड करा, आउटर एंड इनर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल था, इजी था, है ना, प्लैनेट्स का बाइफर्केशन। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक प्लैनेट को हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, उनका इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज कवर कराना चाहूंगी कि आपने शायद क्या पढ़ा था कि प्लूटो भी एक प्लैनेट है ना? आपने शायद ये पढ़ा था कि प्लूटो इज ऑल्सो अ प्लैनेट, है ना? कुछ बच्चों को अभी भी लगता है कि प्लूटो एक प्लैनेट है, बट प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है, राइट? तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई प्लूटो नॉट अ प्लैनेट, राइट? व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट एनीमोर, वी विल स्टडी अबाउट दिस। कि भाई प्लूटो ने ऐसा क्या कर दिया कि वो एक प्लैनेट नहीं है, अब कुछ तो किया होगा प्लूटो ने। अब हुआ क्या, 2005-6 के अराउंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, क्या है ये? दिस इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इन्होंने 2005-6 के अराउंड दे रीडिफाइंड प्लैनेट्स, इन्होंने प्लैनेट्स को रीडिफाइन कर दिया। ठीक है, प्लैनेट्स की क्या दे दी, रीडेफिनेशन दे दी, दोबारा से डिफाइन करा प्लैनेट्स को। अब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी फुलफिलिंग 3 conditions, what they gave? They gave 3 conditions for any celestial body. उन्होंने कहा कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर ये 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रही है would be called as a planet, right? कौन सी वो कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, it should have sufficient mass to hold a round shape, कि इसका sufficient mass होना चाहिए कि राउंड शेप को वो होल्ड कर सके, राउंड हो शेप में। चलो ठीक है भाई, पहली कंडीशन ये बोला, राउंड शेप। दूसरी कंडीशन क्या दी? दूसरी कंडीशन दी that it should revolve around the sun। ठीक है भाई, अगर ये सन है तो सन के अराउंड उस सेलेस्टियल बॉडी को रिवॉल्व करना जरूरी है। अंडरस्टूड? तीसरी कंडीशन क्या दी, दैट कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट का नेबरहुड क्लियर होना चाहिए, कि नेबरहुड ऑफ द ऑर्बिट शुड बी क्लियर। ऑर्बिट का नेबरहुड क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है। मतलब अगर ये ऑर्बिट है तो इस ऑर्बिट का नेबरहुड क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीजें पास कर रही हो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हो उसके ऑर्बिट से। ये 3 कंडीशंस दी, किसने दी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दी। क्या कंडीशंस दी? सफिशिएंट मास टू होल्ड अ राउंड शेप, रिवॉल्व अराउंड द सन, नेबरहुड ऑफ द ऑर्बिट शुड बी क्लियर। अब सारे प्लैनेट्स इन तीनों की तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स वर फुलफिलिंग फर्स्ट कंडीशन आल्सो, सेकंड एंड थर्ड आल्सो।
तो उनको दे दिया किसमें, उनको डाल दिया किस कैटेगरी में, उनको डाल दिया द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स. सो अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी ऑल 3 कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो उसको नाम दे दिया जाएगा क्या, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्लैनेट. ठीक है. अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी केवल 2 कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, only 2 conditions, so it should be called as a dwarf planet. तो हम उसको dwarf planet बोलेंगे. ठीक है. अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ओनली 1 कंडीशन, उस केस में हम उसको बोलेंगे एज अ व्हाट, एज अ माइनर प्लैनेट. राइट, एज अ माइनर प्लैनेट. अब आप ध्यान से देखो, all 3 conditions fulfilled would be called as planet. Only 2 conditions will be fulfilled would be called as dwarf planet. Only 3 conditions fulfilled will be called as what? As a only 1 condition as a minor planet. अब प्लूटो का प्रॉब्लम क्या था? प्लूटो was fulfilling only 2 conditions, इसीलिए तो वो dwarf planet की कैटेगरी में है. कौन सी कंडीशन? क्या उसका सफिशिएंट मास था? हाँ जी भाई, प्लूटो का बिल्कुल सफिशिएंट मास था. ये कंडीशन प्लूटो फुलफिल कर रहा था. क्या प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था. लास्ट में था बट स्टिल इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. पर क्या प्लूटो का ऑर्बिट क्लियर था? नो. द नेबरहुड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो वाज नॉट क्लियर सिंस इट वाज टू फार. डिस्टर्बेंसेस थे, उसका ऑर्बिटल पाथ कोई ना कोई सेलेस्टियल बॉडी क्रॉस करता रह रहा था. देयरफॉर प्लूटो wasn't able to fulfill the थर्ड कंडीशन. केवल 2 कंडीशन फुलफिल हो रही थी, ए और बी, इसीलिए हमने प्लूटो को डाला कौन सी कैटेगरी में? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में. अब आप बोल सकते हो कि मैम चलो ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जांपल आपने दे दिया प्लूटो, ठीक है. मैम प्लैनेट्स का एग्जांपल हमें पता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब प्लैनेट्स हैं. मैम अब एक माइनर प्लैनेट का एग्जांपल बताओ कि एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है. आप पूछ सकते हो. सो माइनर प्लैनेट का एग्जांपल होगा आपका एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स को प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं. वापस से कंडीशंस पे जाते हैं. एस्टेरॉइड कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? केवल एक, और वो कंडीशन क्या है? दैट दे रिवॉल्व अराउंड द सन. एस्टेरॉइड का कोई राउंड शेप थोड़ी है, इट इज अ डेब्री. So they're only revolving around the sun. Therefore, asteroids are known as minor planets. I hope इतना आपको क्लियर हो गया होगा. आप एक बार स्क्रीन की तरफ देख सकते हो. अगर कुछ और नोट डाउन करना है, समझना है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सारे प्लैनेट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. देखते हैं क्या क्या प्लैनेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है. स्टार्टिंग विद मर्करी. हमें लगता है मर्करी सन के सबसे नजदीक है तो वो हॉटेस्ट प्लैनेट होगा, और ऐसा पर नहीं. इज अ कंफ्यूजन, राइट? Mercury is closest to Sun, but that does not make Mercury the hottest planet of solar system. That is a different planet, which is Venus. Venus is the hottest planet. दूसरा Mercury क्या है? Mercury is extremely hot, but it is not hottest. उसके अलावा Mercury पर कोई वाटर नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई ओजोन लेयर नहीं है, राइट? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मर्करी, सबसे छोटा प्लैनेट है, और मर्करी की कोई सैटेलाइट या मून भी नहीं है. मर्करी हैज नो सैटेलाइट और मून. ठीक है, मर्करी के पॉइंटर्स. अगला प्लैनेट आपका आ जाता है वीनस. वीनस अपने आप को बोलता है क्या? कि मैं हूं अर्थ का सिस्टर प्लैनेट या अर्थ का ट्विन. क्यों? क्योंकि इसकी शेप समवॉट सिमिलर टू अर्थ है, राइट? हालांकि स्लाइटली स्मॉलर दैन अर्थ, राइट? स्लाइटली स्मॉलर दैन अर्थ, बट स्टिल
It looks like somewhat similar to Earth. इसलिए Venus is known as what? Venus is known as the sister planet of Earth. Slightly smaller है, but still हम sister planet Venus को बोलते हैं या फिर बोलते हैं Earth's twin. Sister planet और Earth's twin. ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया. Now when the skies are clear, Venus आपको क्या है? Venus आपको फर्स्ट दिख जाता है when the skies are clear, right? कैसे दिख जाता है आपको? आपको अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग्स में Venus दिख जाता है. इसीलिए Venus को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, because Venus is the brightest planet. क्या है इसका एक और पॉइंटर Venus का? Venus का पॉइंटर है that it is the brightest planet. इसीलिए क्योंकि Venus early mornings and late evenings when the skies are clear, Venus is visible, therefore it is known as the brightest planet. ठीक है, ये लिखा हुआ भी है इधर, brightest planet. ओके, अर्थ के नियरेस्ट है Venus, right? उसके अलावा Venus is known as the hottest planet also. Why hottest? Because Venus का atmosphere is 95% कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से सोलर हीट ट्रैप होती रहती है एंड इट एक्ट एज अ वन वे डोर, जिसकी वजह से टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग, राइट? क्या वीनस का कोई मून है, कोई सैटेलाइट है? नो, वीनस हैज नो सैटेलाइट. आई होप दिस इज क्लियर कि वीनस की भी कोई सैटेलाइट आपकी नहीं है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट विच इज अर्थ. अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. इट इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट. हालांकि मैंने क्यों बोला था कि वीनस के सिमिलर है बट सेम नहीं है, क्योंकि इनर प्लैनेट का अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. और अर्थ को प्लीज कंफ्यूज मत होना एज ग्रीन प्लैनेट. अर्थ इज नॉट नोन एज ग्रीन प्लैनेट, इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, राइट? व्हाई? क्योंकि 3/4 of the earth is covered with water, 71% of the earth is covered with water. इसीलिए वीनस को क्या अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. लेकिन लेस देन 1% वाटर इज ड्रिंकेबल और पोर्टेबल. लेस देन 1% वाटर इज ड्रिंकेबल और पोर्टेबल. ठीक है, नाउ अर्थ ना तो ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है उसका टेम्परेचर, इसीलिए अर्थ को बोलते हैं नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट. एंड इस चीज को, इस फिनोमेना को बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन. अर्थ का वो एक गोल्डन जोन है जो ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म है. अर्थ हैज अ गोल्डीलॉक जोन विच इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, राइट? इट इज suitable for sustenance of life, है ना? This is the only planet, only known planet which is suitable for sustenance of life, क्योंकि हमारे पास कार्बन है in the form of CO2, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन लेयर है, वाटर है, all of this, right? अब अर्थ का शेप क्या है? शेप ऑफ अर्थ इज, अर्थ की जो शेप आप पढ़ोगे, शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, also known as oblate spheroid. Shape of earth is geoid or oblate spheroid. अब ये शेप कैसी है? Which is relatively flat at the poles and bulging at the equator, right? Now what is the rotation time of earth? Rotation time है 23 hours 56 minutes 4 seconds. रोटेशन किसका? ऑन इट्स ओन एक्सिस. रिवोल्यूशन कितना है अर्थ का? रिवोल्यूशन इज 365 days 5 hours and 48 minutes, लगभग एक साल. और अर्थ कितना टिल्टेड है? 23.5 degrees टिल्ट है
ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if this is what earth looks like, right? Now if you look at this image closely, अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करूं, this is the center. If I pass equator from here, अगर यहाँ से मैं एक prominent latitude पास कर रही हूँ, that I'll write it down. यहाँ से एक और prominent latitude पास हो रहा है, right? And instead of earth being straight नहीं है, it is slightly tilted. It is slightly tilted. It is not straight, है ना? अर्थ स्ट्रेट नहीं है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है। किस टाइप से है? I'll try to make this as neatly as possible. इस तरीके का टिल्ट है, मतलब अर्थ में स्ट्रेट नहीं जा रहा, अर्थ कुछ ऐसे टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, और इसी तरीके से अर्थ क्या करती है? पोल्स टू पोल्स आपका रोटेट करती है, राइट? चलिए, what is this? This is 0 degree latitude, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? This is known as equator, right? ऊपर क्या है इक्वेटर से? 23.5 degrees north, which is known as Tropic of Cancer, and 23.5 degrees south is known as Tropic of Capricorn. Right? ये आपके Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn है. These are some of the prominent latitudes. ठीक है, अब अगर आप इस शेप को ध्यान से देखेंगे, ये शेप थोड़ी relatively flat लग रही है poles पर. You can look it properly. It appears to be a little flat from the poles, and it appears to be a little bulging from the equator. If you can see it clearly, equator से थोड़ी bulged out है. It's like a किनु. आपने किनु देखा है? Right? आपने किनु fruit देखा है? ये किनु फ्रूट की तरह एग्जैक्टली दिखती है अर्थ. वो ऑरेंज जैसा दिखता है, बट ऑरेंज नहीं होता. इट इज मोर स्वीटर देन ऑरेंज. थोड़ा सा ऐसे टॉप और बॉटम थोड़ा सा फ्लैटर होता है, थोड़ा पिचका हुआ होता है, जिस वजह से सेंटर से इट इज बल्ज्ड आउट, राइट? दिस इज व्हाट द शेप ऑफ अर्थ इज, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं जियोइड या ऑब्लेट स्फेयर. अब अर्थ हमारी कितनी टिल्टेड है? मतलब अगर अर्थ स्ट्रेट होती तो कुछ ऐसी दिखती, बट हमारी अर्थ टिल्टेड है. कितना टिल्ट है? दिस टिल्ट इज 23.5 डिग्रीज. 23.5 डिग्रीज का क्या है? इसका टिल्ट. इंस्टेड ऑफ अर्थ बीइंग स्ट्रेट, इट इज ऐसे नहीं है ना, थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे रोटेट कर. ठीक है, अब अगर 23.5 डिग्रीज का टिल्ट है, मतलब ये एंगल 23.5 डिग्रीज का आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर अर्थ का कितना एंगल बनेगा? सिंपल सी बात है, दैट वुड बी 90 माइनस 23.5, विच मेक्स 66.5 degrees. ठीक है, so earth with respect to equator, the inclination of earth makes an angle कितना? 66.5 degrees का, because 90 degree minus 26.5 degrees is what? 23.5 degrees is what? It is 66.5 degrees. This is what exactly earth looks like. अब इसके अलावा और भी आपके latitudes, longitudes हैं जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे, बट दिस वाज द बेसिक्स ऑफ इट. ठीक है, अगला आपका, क्या अर्थ का कोई मून है? क्या अर्थ की कोई सैटेलाइट है? बिल्कुल है, अर्थ का मून है. अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है विच इज मून, एंड ओनली अर्थ से 59% ऑफ द मून हमारा विजिबल होता है सरफेस.
मून को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोलते हैं बिकॉज ट्रैंक्वाइल इज समथिंग विच इज वेरी काम, वेरी सेरीन, इसलिए मून इज नोन एज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि मूनलाइट कितना टाइम लेता है टू रीच अर्थ। मूनलाइट टेक्स 1.3 seconds. मूनलाइट 1.3 सेकेंड लेता है टू रीच अर्थ। अब सवाल बना, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून नोन एज? द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड एज सिलेनोलॉजी। कोई लूनोलॉजी नहीं, कोई मूनोलॉजी नहीं, इट इज नोन एज सिलेनोलॉजी। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग who likes moon, who loves moon, they call themselves as selenophile, right? So selenology is the study of moon. एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि which of the following is a fossil planet? हालांकि मून प्लैनेट नहीं है, बट स्टिल इट इज रिगार्डेड एज अ फॉसिल प्लैनेट। क्यों? क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इसलिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? दिस वाज ऑल अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ व्हिच इज मून, राइट। अगला आपका जो लास्ट इनर प्लैनेट है इज मार्स। मार्स इज द लास्ट इनर प्लैनेट। मार्स जब आप देखते हो तो रेड कलर का दिखता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। क्यों रेड प्लैनेट है? बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ आयरन, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। थोड़ा कैसा कलर दिखता है मार्स का? रस्ट कलर, है ना, थोड़ा रस्ट वाला कलर दिखता है, इसलिए मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। अब मार्स की दो सैटेलाइट्स हैं, Phobos and Deimos. So Mars is a planet with two satellites, Phobos and Deimos. So देखो इनर प्लैनेट में मर्करी की सैटेलाइट है, नो। वीनस की है, नो। अर्थ की है, हाँ एक मून है। मार्स का 2 moons are there, Phobos and Deimos. ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। Deimos also happens to be the smallest moon of solar system. Deimos also happens to be the smallest moon of solar system, right? ये आपका किस बारे में है? ये आपका वीनस के बारे में है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। अब जब हम जुपिटर की बात करते हैं, सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट। Jupiter is the largest planet, largest in general. Earth is the largest inner planet, ठीक है। Jupiter को winter planet भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर है -148 डिग्री सेल्सियस। Since average temperature is -148 degree Celsius, इसलिए Jupiter is known as the winter planet, right? Jupiter is the 4th brightest object. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइट हुआ क्या आपका? सन, फिर हुआ आपका मून, फिर आया वीनस एंड देन जुपिटर। बट अगर प्लैनेट्स की बात आएगी तो जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अगर ब्राइटेस्ट प्लैनेट की बात आएगी तो जुपिटर सेकेंड है, वीनस है फर्स्ट नंबर पे व्हेन इट कम्स टू बीइंग ब्राइट। Is it clear? So Venus is the first brightest, Jupiter is the second brightest planet. I hope this is clear. Now Jupiter का rotation time सबसे ज़्यादा short है. It completes its rotation in approximately 10 hours, 9 hours 55 minutes. And उसके साथ साथ Jupiter is the planet, or I would say second planet with maximum moons. जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है सेकेंड नंबर पे जिसके मैक्सिमम मून्स हैं एज वी स्पीक, राइट। हालांकि मून्स या सैटेलाइट्स डिस्कवर होते रहते हैं, एज वी स्पीक जुपिटर इज द प्लैनेट विद मैक्सिमम मून्स। और उन सारे प्लैनेट्स, उन सारे मून्स में गैनीमेड जो उसका प्लैनेट है इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। गैनीमेड जो मून है इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम। सो अगर आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, जीएमओस। लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम इज गैनीमेड।
GMOs किसका है? मार्स का है. गैनीमीड किसका है? जुपिटर का है. So this is what the difference is. Clear? Now, moving on to the next planet, which is Saturn, Uranus and Neptune. ये आपके 3 planet बचे हैं. So Saturn is the planet जो क्या है आपका second largest planet है, right? Saturn is the second largest planet. उसके अलावा Saturn is the only planet with visible rings. और Saturn को flattest planet भी बोलते हैं. अब आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये Saturn है और ये आपके Saturn के rings हैं, right? Saturn के आपके rings हैं. अब rings की वजह से imagine ये आपका Saturn है और ये आपका Earth. क्या rings की वजह से थोड़ा flat dimension आ रही है Saturn की? Yes. इसीलिए Saturn को बोलते हैं flattest planet and it is the only planet with visible rings now. ठीक है. Saturn की है अभी maximum number of satellites, but you should not be surprised अगर ये नंबर चेंज हो जाता है तो, right? ये नंबर आपका चेंज हो सकता है क्योंकि न्यू एंड न्यू सैटेलाइट्स कीप्स ऑन डिस्कवरिंग. अगला प्लैनेट है आपका यूरेनस. अब यूरेनस को बोलते हैं क्या? यूरेनस इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट. अब यूरेनस इफ इट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट, तो क्यों ग्रीन होता है? बिकॉज इट हैज a gas which is known as methane in its atmosphere. और मीथेन गैस की वजह से यूरेनस gives a very greenish hue or greenish tint because of the methane gas, right? मीथेन के गैस की वजह से greenish hue, greenish tint दिया जाता है, आता है यूरेनस में, इसलिए यूरेनस is known as the green planet. यूरेनस की एक दो और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और वो क्या है कि यूरेनस को बोलते हैं प्लैनेट ऑन इट्स साइड. क्यों यूरेनस को प्लैनेट ऑन इट्स साइड बोलते हैं? क्योंकि इसका इंक्लिनेशन बहुत लार्ज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ 23.5 डिग्रीज इंक्लाइंड है, यूरेनस इज इंक्लाइंड दिस मच. सो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस लाइक दिस, अर्थ ऐसे करती है रोटेट बिकॉज टिल्टेड है, यूरेनस रोटेट्स लाइक दिस, राइट? सो इसीलिए यूरेनस इज नोन एज व्हाट? यूरेनस इज नोन एज प्लैनेट ऑन इट्स साइड. अगला, यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट प्लैनेट जो टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था इन 1781. किसने डिस्कवर किया था? सर विलियम हर्सी. ही डिस्कवर्ड यूरेनस, पहला प्लैनेट विद टेलीस्कोप. ठीक है. एंड द लास्ट प्लैनेट नेपच्यून. दो ही पॉइंटर्स हैं. नेपच्यून फारदेस्ट है एंड नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. नेपच्यून इज नॉट द विंटर प्लैनेट. आप नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट ही मार्क करोगे, आप नेपच्यून को विंटर प्लैनेट करके मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि विंटर प्लैनेट आपका क्या है? विंटर प्लैनेट इज जुपिटर. क्यों? क्योंकि उसका एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस है, राइट? हाँ, अगर कोल्डेस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है, विंटर दिया है और आपको प्लैनेट में जुपिटर का नाम है ही नहीं, तो आप नेपच्यून को विंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नो, राइट? अगला क्वेश्चन आपका आता है एस्टेरॉइड्स, प्लैनेटॉइड्स बोला जाता है. एस्टेरॉइड्स आर आल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स. और क्या बताया था मैंने? माइनर planets. Asteroids are known as planetoids or minor planets, right? क्यों minor planets? Because they orbit around the sun. और किन के ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं? Found between the orbits of Mars and Jupiter. अब asteroids क्या है? Asteroid is nothing, it is a belt of debris. सिर्फ एक डेब्री की बेल्ट है, राइट? जो राउंड शेप अज्यूम नहीं कर पाई है, राउंड शेप नहीं ले पाई है, बट इट इज नॉट अ प्लैनेट, बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इसीलिए हमने इसको प्लैनेटॉइड या माइनर प्लैनेट्स बोला है. और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है इन अ बेल्ट व्हिच इज नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट, राइट? अब मुझे एक बात बताइए,
For example, if this is sun, right? Sun के अराउंड आपके planets हैं Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter और बाकी planets, right? So for example, if we have this as Earth, sorry, if we have this as Mars, ठीक है, ये Earth हो गया, right? और ये आपका जुपिटर हो, ठीक है. एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में है? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये रेड वाला हमने मार्स कर लिया, ये आपके बीच में इनकी है एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें क्या है बेटा? जिसमें है डेब्री, और वो डेब्री सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा. ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई, राइट? I'll just write it down. This is asteroid belt, right? और वो आपका क्या था? वो आपका जुपिटर हो गया ऊपर, ठीक है. This is Jupiter, ब्लू वाला इज अर्थ, रेड वाला इज मार्स, ठीक. अब जब ये डेब्री मूव कर रही है, आर देयर एनी चांसेस ऑफ कोलिजन कि आपस में ये कोलाइड कर सकते हैं? क्या कोलिजन के चांसेस हैं? हाँ जी, बिल्कुल है, राइट. सो कोलिजन पॉसिबिलिटी है, कोलिजन कैन हैपन. ना आपने देखा होगा कि स्पेस में whenever two things collide, usually there's an explosion that takes place, है ना. So collision होगा, collision can happen, और उसकी वजह से क्या होगा? explosion होगा, है ना. explosion होगा, the asteroid belt will start, or the asteroids will start burning up, right? explosion होगा, प्लस क्या चांसेस हैं कि जो एस्टेरॉइड है वो ब्रेक हो जाए? आपस में टकराया, चांस क्या होगा कि वो ब्रेक कर जाएगा. ब्रेक करेगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? अगर वो ब्रेक किया, सो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज. या तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक करेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगा, या फिर वो किस में ब्रेक करेगा? वो ब्रेक करेगा लार्ज फ्रेगमेंट्स में. तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. या तो इट विल ब्रेक इन स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स, और इट विल ब्रेक इन लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स. अब जब वो ब्रेक हुआ, जब वो कोलाइड हुआ, आर देयर एनी चांसेस ऑफ देम लूजिंग देयर ऑर्बिटल पाथ? कुड बी. सो क्या है? दैट दे कैन लूज देयर ऑर्बिटल पाथ. अपना ऑर्बिटल पाथ वो लूज भी कर सकते हैं. एंड सिंस अर्थ इज हियर, अर्थ हैज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल कर सकता है. सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अर्थ या अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये 3-4 पॉसिबिलिटीज होंगी. पहली पॉसिबिलिटी क्या? कि वो आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने की वजह से एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन की वजह से विल स्टार्ट बर्निंग अप, राइट? विल स्टार्ट बर्निंग अप, ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? कि वो अपना ऑर्बिटल पाथ लूज कर सकते हैं, राइट? ऑर्बिटल पाथ लूज करेंगे, अर्थ विल अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और उसके साथ ब्रेक हो सकते हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स या लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स. सो जो भी डेब्री आपकी स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स में ब्रेक हुई है, राइट, इट विल बर्न अप इन स्पेस बिफोर लैंडिंग ऑन अर्थ, राइट? वो स्पेस में कहीं बर्न अप हो जाएगी बिफोर लैंडिंग ऑन अर्थ. यस और नो? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है.
whereas the large fragment of rocks के साथ क्या होगा, will keep burning and eventually would land on Earth. कि जो स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स है वो तो जलते जलते अर्थ की तरफ आएंगे और समवेयर अर्थ में एंटर करने से पहले वो पूरी तरह जल जाएंगे, लेकिन लास्ट फ्रैगमेंट ऑफ रॉक क्या होगा कि इवेंचुअली वो जलते जलते अर्थ की तरफ बर्न करते हुए वो आएंगे. स्मॉलर फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स आर नोन एज meteors. So meteors are those asteroids which burns completely before landing on Earth. और meteors को बोलते हैं क्या? Meteors are known as shooting stars. टूटता तारा. ठीक है. लार्ज फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स जो कंप्लीटली आपके बर्न अप नहीं हुए अर्थ पर लैंड कर सकते हैं, दीज आर नोन एज मीटियोरॉइड्स. These are known as meteoroids. Meteoroids are the last fragment of rocks जो completely burn up नहीं होते हैं और वो अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, तो वो आपके क्या हुए? वो आपके हुए meteoroids, right? So अगर देखा जाए originally meteors and meteoroids आ कहाँ से रहे? And they are coming from asteroid belt. Okay, I hope this much is clear to all of you. Now, next topic is comets. Comets क्या होते हैं? कॉमेट्स होते हैं विजिटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. क्यों? क्योंकि ये बने हैं फ्रोजन गैसेस से, राइट, एंड रॉकी मेटालिक मिनरल्स. इनसे आपके कॉमेट्स मिलके बने हुए हैं. और कॉमेट विजिबल कभी होता है? when it travels close to sun is visible only when it travels close to sun. अब सिंपल सी बात है, ये आपका कॉमेट की शेप होती है. जब सन के पास से ट्रैवल करेगा तो frozen gases would melt. और जब मेल्ट होगी तो क्या होगा? It will form a tail. Tail हमेशा सन से अवे पॉइंट होगी. Tail will always be away from the sun. कॉमेट्स को क्या है? कॉमेट्स को बोलते हैं hairy stars, because कॉमेट्स कुछ कुछ इस टाइप से जाता है, kind of a hair strand, है ना, टेल के फॉर्म में. इट इज नोन एज हेरी स्टार्स, राइट. अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कॉमेट के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे ये सन है, राइट, सारे के सारे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन. ठीक है. कॉमेट कैसे कर रहा है? कॉमेट का ऑर्बिट है कुछ, क्या है कॉमेट का ऑर्बिट? दिस इज द ऑर्बिट ऑफ कॉमेट which is called as elongated ellipsis. Comet का orbit is known as elongated ellipsis. क्यों? It is not elliptical. आप देखो बिल्कुल elongated है वो ellipse. It is not elliptical. That is what the orbit of comet is. क्योंकि comets कई बार hundreds and कई बार तो thousands of years ले लेते हैं to complete one revolution around the sun. Sun के अराउंड एक revolution पूरा करने में thousands of years ले लेते हैं. आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है हेलीज कॉमेट का. हेलीज कॉमेट का आपको एग्जाम्पल मिल सकता है. हेलीज कॉमेट क्या है? हेलीज कॉमेट इज ही विच कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन समवेयर अराउंड 74, 75, 76 इयर्स भी लग जाते हैं. सो दैट इज व्हाट हेलीज कॉमेट इज, राइट. एंड हेलीज कॉमेट के बारे में तो मैं ऐसे पता है बिकॉज रफली 75 इयर्स बाद हमें दिख जाता है, राइट. 76-75 इयर्स बाद हमें दिख जाता है. बट बाकी कॉमेट्स के बारे में तो हमें पता भी नहीं है, विच टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स एट टाइम्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. दैट इज अबाउट व्हाट कॉमेट्स इज. अगला टॉपिक है आपका स्टार्स. स्टार्स की खुद की लाइट होती है, राइट. दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, राइट. ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशंस. उसके अलावा NASA, which is National Aeronautics and Space Administration, NASA के अकॉर्डिंग, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी NASA के अकॉर्डिंग
क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज प्रोक्सिमा सेंचुरी आफ्टर सन। तो सबसे पहले सन इज क्लोजेस्ट, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी। आफ्टर सन, Proxima Centauri is the closest star to Earth, and it takes about 4.24 light years away. Right? इतने light years away है this particular star from Earth. Next comes constellations. Total 88 recognized constellations है. Constellations क्या होते हैं? Constellations are the pattern या फिर group of stars आप बोल सकते हो. Constellations are group of stars. Total 88 recognized constellation है. Ursa Major, Great Bear, Saptarishi, Ursa Minor, Little Bear, Dhruv, Matsya, ये सब कुछ major constellations है, पर plus 12 zodiac signs. 12 zodiac sign कौन कौन से? Taurus, Leo, Aries, Libra, Capricorn, Cancer, Gemini, then Pisces. Right? So these are what? These are some of the 12 zodiacs. Now, Earth की shape मैंने आपको बता दी that either it is in geoid shape or it is in oblate spheroid shape. और Earth at all times तीन तरीके के movement रखता है: rotation, revolution and galactic movement. Rotation, revolution and galactic movement are the three types of movement of Earth. Rotation मतलब क्या? Rotation on its axis. Revolution क्या? Revolution around the sun. And galactic movement because of the galaxy moving. बताया था ना, Milky Way galaxy is also moving around, rotating on its own, on its उस पर which is known as a galactic center. So वो भी move कर रहा है. तो Earth at all times experiences three types of movements. अब हमें पता है कि Earth का जो rotation है is from west to east. इसीलिए sun rises in the east and sets in the west. Rotation time आपको बता दिया 23 hours 56 minutes and 4 seconds. कितना inclination है? 23.5 degrees है. और Earth के tilt को बोलते हैं inclination of Earth. ठीक है. और इसी वजह से आपका डे एंड नाइट डिफर करता है एट ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ. क्यों? क्योंकि ये इसका इंक्लाइंड एक्सिस है. राइट? इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग स्ट्रेट, दिस इज इंक्लाइंड 23.5 डिग्रीज. और मान लो सन अगर इधर है, इसकी वजह से सन क्या है? इस तरीके से सन इज एबल टू गिव लाइट, है ना. ये अगर स्ट्रेट होता तो पूरा इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता, बट ऐसा नहीं है. तभी आप देखो कि यहाँ पर फुल्ली सनराइज आगे जो है वो नहीं आ पा रही है, यहाँ पर फुल्ली तरीके से आ रही है. देयरफॉर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. एंड इसीलिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां पे कॉन्टिन्यूस सनलाइट फॉर 3 months रहती है. राइट? जैसे कि नॉर्वे है. नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. वहां पे क्या रहेगा नॉर्वे में? 3 months फ्रॉम May to July ऑफ कॉन्टिन्यूस लाइट, सनलाइट. इसका अपोजिट फिनोमेना जब नॉर्वे में ऐसा हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 3 months ऑफ डार्क. फिर यहाँ पर लाइट आएगी तो नॉर्वे में 3 months ऑफ कॉन्टिन्यूस डार्कनेस. सो इसीलिए नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज. अगला आपका कुछ फिनोमेना है जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं. पहला फिनोमेना है पेरीहीलियन. पेरीहीलियन आप ऐसे याद रखोगे, P फॉर पास, P फॉर पेरीहीलियन. मतलब क्या? जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम हो. अर्थ एंड सन आर नियरेस्ट. कब होते हैं? 3rd जनवरी को होता है. आप सोच सकते हो कि मैम 3rd of January को तो 3rd of January को क्या होता है? 3rd of January को तो आपका वो है विंटर्स होते हैं. राइट? देन हाउ कम अर्थ एंड सन आर क्लोजेस्ट? ये आप सोच सकते हैं. ठीक है. सो ये आपका क्या है? क्यों? क्योंकि वो तो केवल क्या है? वो आपका फिनोमिना है. किसमें? फिनोमिना है ओनली एंड ओनली इन
इंडिया, राइट, क्योंकि इंडिया किस में है आपका, इंडिया आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपकी ये है कि आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री दैट एक्सपीरियंसेस समर्स का, समर्स इन, या फिर क्रिसमस इन समर्स, है ना। तो क्या होता है वो फिनोमेना कि भाई सन जो है ज्यादा वहां एक्सपोज्ड है। एफिलियन क्या है, एफिलियन इज द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। फारदेस्ट पॉइंट कैसे कि अर्थ और सन सबसे ज्यादा दूर है, फारदेस्ट है, और कब होता है ये, 4th of July को। एफिलियन हैपेंस, ए फॉर एफिलियन, ए फॉर अवे, ऐसे याद रख सकते हो। किस दिन होता है, 4th of July को, राइट। उसके बाद एक आता है आपका समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस इज व्हेन देयर इज लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में सन मैक्स एक्सपोज्ड है, कब होता है, 21st of June को। दूसरा है विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस मतलब क्या कि सदर्न हेमिस्फीयर में सन ज्यादा एक्सपोज्ड है, सन ज्यादा एक्सपोज नहीं है, तो वी हैव लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे, कब होता है, 22 दिसंबर को। अब आप बोल सकते हो कि मैम ये दोनों डेट्स तो इंडिया से मैच कर रही हैं, व्हाई सो, रीजन बीइंग इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए। अगर आपको सदर्न हेमिस्फीयर का क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप 22 दिसंबर बताओगे, राइट। क्या, समर सॉलिस्टिस को आपको ये डेट्स एक्सचेंज कर देनी है, अगर आपसे किसका पूछ रहे हैं, अगर आपसे सदर्न हेमिस्फीयर का पूछ रहे हैं तब। अगर उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन करके नहीं पूछा क्वेश्चन में तो आपका क्या होगा, तो आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि नॉर्थ आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद साल में 2 ऐसे दिन होते हैं जब दोनों के दोनों हेमिस्फीयर्स पे बराबर की सनलाइट आती है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। 2 इक्विनॉक्स होते हैं इक्वेटर पर जब सन आपका होता है, और ये साल में 2 बार है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। सो एक आपका आ गया स्प्रिंग में, इसलिए इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, दूसरा आ गया सितंबर में, इसीलिए इसको ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। सो दीज आर द 6 डेट्स दैट यू शुड रिटेन। अगला आपका है अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में जो आपको एक चीज पता होनी चाहिए वो क्या है, इज द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस और नॉट। अब ये आपका इक्वेटर हो गया, राइट, और इक्वेटर के जैसे देयर आर अदर लाइंस ऑल्सो विच इज देयर ऑन अर्थ, राइट। ये आपके सारे क्या हो गए, ऑल दीज आर द फ्लैट लेइंग लाइंस ऑन अर्थ, राइट। अब कुछ आपकी लाइंस होती हैं विच आर लॉन्ग लाइंस विच रन फ्रॉम पोल टू पोल, राइट। पोल टू पोल कुछ लाइंस रन करती हैं लाइक दिस, राइट। ये आपकी लाइंस हुई रन कुछ पोल टू पोल विच आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। सो ऑल द फ्लैट लाइंस, राइट, सारी की सारी जो फ्लैट लाइंस हैं, लेटिवी लाइंस हैं, आर नोन एज लैटिट्यूड्स, राइट। All the long lines running from pole to pole are known as longitudes. इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। Now 0 डिग्री लैटिट्यूड फिक्स था। 0 डिग्री लैटिट्यूड आपका है क्या, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, बट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फिक्स नहीं था, सो उसको भी फिक्स करने की जरूरत थी। सो व्हाट दे हैव डन, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा था, दे सेड लेट्स कीप इट एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
लेट्स कीप इट एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड एक और लाइन उन्होंने लिखी दैट ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर मेरिडियंस, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस बोला जाएगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाएगा प्राइम मेरिडियन, राइट? सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वुड बी कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, राइट? ये नाम दे दिया गया। अब ये प्राइम मेरिडियन कहां से तो पास हो रहा होगा? दिस प्राइम मेरिडियन passes through Greenwich, लंदन। और यहीं से क्या डिसाइड हुआ? यहीं से टाइम डिसाइड होते हैं एंड दे कॉल्ड इट एज GMT, विच इज ग्रीनिच मीन टाइम, राइट? ये आपका क्या हो गया? यहां से आपका स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया सेट हो गया, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्ल्ड। सारे कंट्रीज ग्रीनिच से उनका टाइम कैसा चल रहा है उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट ऑपोजिट भी एक लॉन्गिट्यूड होगा, राइट ऑपोजिट, राइट? तो वो लॉन्गिट्यूड क्या था? वो था आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट ऑपोजिट। राइट ऑपोजिट वाज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और उसको नाम दिया इंटरनेशनल डेट लाइन। उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से पास हो रही है? थ्रू मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है? सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, उसके बाद आपका आता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशन, राइट? अब नेक्स्ट आपको इसमें पता होना चाहिए कि इंडिया का जो टाइम है वो कैसे आपका वेरी करेगा। इंडिया का टाइम कैसे वेरी करेगा? अब इंडिया से एक प्रोमिनेंट लैटिट्यूड पास हो रहा है which is this Tropic of Cancer. Let's assume this is at 23.5 degrees north. ये है आपका। So इंडिया से एक इंडिया इज समवेयर हियर, क्योंकि हमने पढ़ा है Tropic of Cancer divides India in almost 2 equal halves, right? So India is somewhere here, ठीक है? अब इंडिया आप देखो, इंडिया इज अहेड ऑफ दिस GMT। इंडिया क्या है? इंडिया GMT से आगे की तरफ है, अहेड है। कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। सो बेसिकली जब हम इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं IST। IST क्या है? इट इज GMT प्लस 5.5 घंटे। ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। क्या आप GMT में 5.5 घंटे ऐड कर दोगे तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर GMT पर दोपहर का 1 बज रहा है तो इंडिया में शाम के 6:30 आपके हो रहे होंगे, ठीक है? 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर कोई कंट्री GMT से बैकवर्ड साइड में है, राइट? एनी नेशन इज बैकवर्ड साइड ऑफ GMT। सो 2 चीजें आ सकती हैं। अगर कोई नेशन बैक साइड में है, बैक साइड इसलिए लिख रही हूं यहाँ पे आपको समझने के लिए आसान होगा, पीछे की तरफ, और बिहाइंड या फिर वेस्ट डायरेक्शन में है तो टाइम आपका क्या होगा? टाइम आपका होगा माइनस, GMT से टाइम माइनस होगा। अगर कोई कंट्री अहेड है और ईस्ट डायरेक्शन में है GMT से तो टाइम आपका ऐड होगा। सो इंडिया का टाइम क्यों हमने ऐड करा है? क्योंकि इंडिया इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, राइट? ईस्ट डायरेक्शन के साथ साथ हमने क्या करा? टाइम ऐड करा किसमें? GMT में। कितने घंटे? 5.5 घंटे, राइट? सो दिस इज व्हाट द टाइम दिस इज व्हाट हाउ टाइम गेट्स डिटरमाइंड, ठीक है? ये पूरा वही है जो आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करा है। नाउ कम्स द एटमॉस्फेयर।
which is what? Which is the layers of earth. Layers of earth is known as atmosphere, right? अब एटमोस्फियर क्या है? एटमोस्फियर में टोटल आपके होते हैं 5 लेयर्स, बट एटमोस्फियर इज बेसिकली द एनवेलप ऑफ अर्थ. अर्थ के एनवेलप को एटमोस्फियर कहते हैं, राइट? ये पूरे अर्थ को सराउंड करता है एंड अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ से ऊपर का जो है इज व्हाट? एटमोस्फियर. और 32 किलोमीटर तक. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अर्थ का एनवेलप ये ऊपर है, लेट्स से दिस इज 1000 किलोमीटर्स. सो केवल 32 किलोमीटर्स तक ही 99% ऑफ एटमोस्फेयर खत्म हो जाता है, बट एटमोस्फेयर इज अबाउट 1000 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ, है ना? एटमोस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स आपकी होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर दैट वी हैव. ट्रोपोस्फियर क्या है? क्लाउड फॉर्मेशन है, आइडियल लेयर, क्लाउड फॉर्म होते हैं. क्लाइमेटिक चेंजेस आपका ट्रोपोस्फियर में होता है एंड ट्रोपोस्फियर में आपका क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेस. आप माउंटेन एरियाज में जाते हो, टेम्परेचर आपको ड्रॉप करता हुआ दिखता है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है? स्ट्रैटो में आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग प्लेन्स और टेम्परेचर फिर आपका इंक्रीज करता है. मेसोस्फियर में टेम्परेचर वापस डिक्रीज करेगा, प्लस मेसोस्फियर में आपके होते हैं मीटियोर्स बर्न अप. मीटियोर्स गेट्स बर्न्ड अप इन मेसोस्फियर. थर्मोस्फियर में एक थिन लेयर है आयनोस्फियर, जिसमें चार्ज आयंस आपके प्रेजेंट हैं, इसीलिए रेडियो कम्युनिकेशन थर्मोस्फियर से पॉसिबल है और वापस से टेम्परेचर इंक्रीज. एंड फाइनली एक्सोस्फियर. एक्सोस्फियर इज द एग्जिट ऑफ एटमोस्फियर एंड टेम्परेचर कीप्स ऑन rising. So basically after thermosphere the temperature keeps on rising and rising rapidly. ठीक है? This is about the layers of atmosphere. ठीक? अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. सो इंटरनली अर्थ में क्या है? 3 पार्ट्स हैं आपके. फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अर्थ, सो देयर आर 3 पार्ट्स. राइट? एक पार्ट आपका ये है, ठीक है? एक पार्ट आपका ये है, और एक इंटरनली पार्ट आपका है. ये 3 लेयर्स हो गए इंटरनली अर्थ, राइट? नाउ द इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज, सबसे अंदर होता है आपका कोर, ठीक है? कोर के ऊपर फिर है आपका मैंटल, दैट इज द लेयर इन बिटवीन, ठीक है? एंड सबसे ऊपर आपका क्या आ गया? सबसे ऊपर आ गया आपका क्रस्ट, ठीक है? अब कोर आपके 2 टाइप के होंगे, या तो वो इनर कोर होगी या फिर होगा आउटर कोर. ईदर इट विल बी इनर कोर और इट विल बी आउटर कोर. इनर कोर इज सॉलिड और इन सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है? इनर कोर आपकी सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी. आउटर कोर इज इन लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म, है ना? जिससे वोल्केनिक इरप्शन होगा, दैट इज आउटर, राइट? मैंटल इज द लेयर विथ मैक्सिमम वॉल्यूम. मैंटल एक ऐसी लेयर है हमारे अर्थ में इंटरनली जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है. और उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्रस्ट. क्रस्ट में 2 लेयर्स होंगी, एक आपकी होगी अपर क्रस्ट और एक आपकी होगी लोअर क्रस्ट. अपर क्रस्ट सिंस उस पर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट.
Lower crust, since उसमें ocean beds are deep, it is known as oceanic crust. इसलिए जब आप देखो हमने ये इमेज भी बनाई तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमने किसका रखा, मैंटल का रखा, because it has maximum weight. I hope this is clear to all of you. Layers of internal structure of earth. यही यहाँ पे दे रखा है. लोअर पार्ट को बोलते हैं साइमा because it has silica and magnesium. Upper part of the crust is known as sile, which is it has silica and aluminium. है ना, इसको बोलते हैं sile. Mantle, maximum volume. Outer core and inner core, ये देखो, outer core is probably liquid state, inner core is in solid or semi-solid state. और जैसे जैसे हम internally जाते रहते हैं, density keeps on rapidly increasing. Is it clear? So internally ये layers है और ऊपर है आपका atmosphere, right? And ये कुछ आपके world facts हैं कि world का longest river is Nile, largest is Amazon, right? World's deepest point is Mariana Trench. Mariana Trench आपका कहाँ पर है? It is in Pacific Ocean. एक बार एक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मरियाना ट्रेंच का भी कौन सा पॉइंट, ट्रेंच इज व्हाट, फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर लेवल, ट्रेंच इज जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा डिप कर रहा होगा, है ना, नीचे हो, ट्रेंच इज दिस. क्वेश्चन आया था कि कौन सा पॉइंट डीपेस्ट पॉइंट. सो द डीपेस्ट पॉइंट इन मरियाना ट्रेंच is known as Challenger's Deep. That is basically the deepest point of, right? And finally कुछ हमारे इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं कि इंडियन टाइम जीएमटी से कितना आगे है, 5 hours 30 minutes ahead of GMT. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सा है, मेरिडियन पूछा है तो मतलब लॉन्गिट्यूड 82.5 degrees east, right, is what is held, it's the longitude that helps in calculating the time. Tropic of Cancer almost divides India into 2 equal halves. कौन-कौन से स्टेट से पास होता है, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. कौन-कौन से, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. Northern most point of India is Siachen Glacier. Southern most point of India Idra Point, Andaman and Nicobar Islands में है. Southern most point of Indian mainland अगर पूछेंगे तो क्या है आपका, कन्याकुमारी, which is in तमिलनाडु, and India is the 7th largest country of the world and आपकी है most populous. ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट्स हो गए. और कुछ नॉर्मल फैक्ट्स कि हमारा जो है इंडिया इज अ पेनिनसुला. व्हाट इज अ पेनिनसुला? Peninsula is any water, any landform, landmass which is surrounded by water body on 3 sides. So we have here what? We have the Arabian Sea here, we have the Bay of Bengal here, and then we have here the Indian Ocean. और ये हमारे कुछ इंडिया के facts हैं about the tallest mountain, longest river and everything, right? So this is what the pointers of Indian geography are. Static pointers. I hope these things are clear to you, and here we wind up the entire geography, the foundation class of geography, which is important for UG level entrances. Thank you so much, and please stay tuned with Pratham Test Prep.